नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भाजपा नेताओं ने राज्य की कांग्रेस सरकार की विफलताओं को गिनाया। अधिकारी रहे सावधान, ना हो पेयजल की समस्या, मंत्री ईश्वर खंडरे के निर्देश। वीपी धनखड़ का कहना है कि राजनीतिक फायदे के लिए देश विरोधी भावनाएं फैलाई जा रही हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का कहना है कि मास्क पहने, टोपी पहने आदमी ने टाइमर ठीक कर दिया, बम फट गया। औरंगाबाद में तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे पीएम मोदी का परिवारवादी लोगों की राजनीति को बिहार ने नकारा। बीजेपी नेता जयवीर सिंह का बड़ा बयान, हम चाहे तो सपा को खत्म कर, डिम्पल ने दिया जवाब। समाचार विस्तार से। राज्य में सूखे का प्रकोप है, पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। विकास कार्य ठप पड़े हैं। राज्य में कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है। आलंद और अफजलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी। कुकुर बम फोड़ने वालों को कांग्रेसी भाई कहते हैं। रामेश्वर कैफे में बम विस्फोट। इस विभिन्न मुद्दों को लेकर आज बीदर शहर के पत्रिका भवन में भाजपा के नेताओं ने एक प्रेस मीट में बात करते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार की आलोचना की है। इस मौके पर भाजपा के जिलाध्यक्ष सोमनाथ पाटिल, प्रभु चौहान, एमएलसी रघुनाथ राव मलकापुरे, हुमनाबाद विधायक सिद्धू पाटिल, बसवा कल्याण विधायक शरणु सगार, चिंचोली विधायक डॉक्टर अविनाश जाधव, आलंद के पूर्व विधायक सुभाष गुत्तेदार, पूर्व विधायक प्रकाश खंडरे, बीजेपी प्रवक्ता सदानंद जोशी, नेता ईश्वर सिंह ठाकुर, स्वराज पवार, मीडिया मॉडरेटर श्रीनिवास चौधरी, संगमेश नसीगर सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। नमस्कार ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕಾರ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ। ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು, ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರವಕ್ತರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರನ 9 ತಿಂಗಳಾಯಿತು, 9-10 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ। ಈ 9 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ। ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ಖಾಸ್ತ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ। ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 7 ಕೋಟಿ ಜನತಾ, ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಭವನ್, ನಮ್ಮ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಹಾಶಯರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಎಂಪಿ ನಾಸಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವ್ರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಶಕ್ತಿ ಭವನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಈ ಘೋಷಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಒಳಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದ ಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನಮ್ಗೆ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಕಳೆದ 3 ವಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಆಗಿದೆ, ಗವರ್ನರ್ ಭಾಷಣ ಆಗಿದೆ। ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪರಿಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ, ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷದಿಂದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। 12 ಬಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ। ಈ ಕೆಟ್ಟ ಬಜೆಟ್ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ। ಬಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ 1 ವರ್ಷದ ಈ ಶಾಸಕರು, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಹಿರಿಯರಾದ ರಘುನಾಥ ರಾವ್ ಮಲ್ಕಾಪುರೆ ಇದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ। ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 875 ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಆಗಿದೆ। ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಕಡೆ ಕಣ್ತೆರೆದು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ।
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಂತ್ರಿನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಬರುವಂಥ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ತಾಂಡವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಹಾಕಾರ ಎದ್ದಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಡೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು ಬಂದಾಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. जैसे जैसे गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अधिकारियों को सावधानी बरतनी चाहिए ताकि बीदर जिले के किसी भी इलाके में पानी की समस्या न हो। उन्होंने शहर को पेयजल समेत अन्य मुद्दों पर अधिकारियों के साथ बैठक की। बोरवेल और खुले कुएं सूख गए हैं और इस गर्मी में हर जगह पानी की कमी है, खासकर औराद और पालकी में है। पहले मेरे विधानसभा क्षेत्र में लड़कियां 1 किलोमीटर साइकिल चलाती थी। उन्होंने दूर से पानी लाने की दलीलें देते हुए कहा कि इस तरह के मामले जिले में नहीं दिखने चाहिए। मंत्री ने पशु विभाग के अधिकारी को निर्देश दिया कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, नगर परिषद, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और नगर निगम के अधिकारी जिम्मेदारी से काम का प्रबंधन करें और सुनिश्चित करें कि इस गर्मी में मवेशियों के लिए चारे की कोई समस्या न हो। लोगों को साफ पानी मिलना चाहिए। पिछले दिनों हमें दूषित पानी पीने के कारण कुछ जगहों पर दुर्घटनाएं देखी हैं। जिले में ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी। हमारी पहली प्राथमिकता पेयजल होनी चाहिए और किसी भी शिकायत पर तुरंत जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पेयजल समस्या के लिए एक हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था की गई है। एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारी आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश विरोधी बातें प्रचारित करने वाले लोगों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ऐसे लोगों को करारा सबक सिखाया जाना चाहिए। IIT धारवाड़ में एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भारत एक ऐसा देश है जो बड़े पैमाने पर बदलाव कर रहा है और पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। शुद्ध राजनीतिक लाभ के लिए कुछ तत्व राष्ट्र विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं और देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को ऐसे तत्वों से सावधान रहना चाहिए और उन पर अंकुश लगाना चाहिए। राष्ट्र पहले, हमें देश हित से समझौता नहीं करना चाहिए। हमें भारत पर गर्व होना चाहिए जो वर्तमान में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जो अगले कुछ वर्षों में 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की एक टीम ने शुक्रवार को बैंगलोर के व्हाइटफील्ड में रामेश्वर कैफे में गुरुवार को हुए बम विस्फोट की जांच। धमाके में 10 लोग घायल हुए। बैंगलोर पुलिस ने आईपीसी की धारा 307, 471 और यूएपीए की धारा 16, 18 और 38 के तहत एफआईआर दर्ज की है। उन्होंने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 जोड़ी है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि संदिग्ध रूट नंबर 26 बस से आया था। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि संदिग्ध व्यक्ति जो नकाब और टोपी पहने हुए था एक बस में आया था, टाइमर ठीक किया और विस्फोट कर दिया। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री ने कल घटनास्थल का दौरा किया। मैं भी आज अस्पताल और घटनास्थल पर जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि यह किसी संगठन का काम है या नहीं। इतनी गंभीर जांच चल रही है। बीजेपी को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इस मामले में राजनीति, बैंगलोर विस्फोट और बैंगलोर विस्फोट का कोई संबंध नहीं है। विस्फोट की अभी भी जांच जारी है। रिपोर्ट के बाद उचित कार्यवाही की जाएगी। ईरानी कॉलोनी में बीजापुर वक्फ बोर्ड सलाहकार समिति का स्वागत और सम्मान। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बीजापुर वक्फ बोर्ड सरकार की बदतर बन गई है, जिसके चलते शहर बीजापुर के हजरत हमजा हुसैनी दरगाह दरबार ग्राउंड के पास स्थित ईरानी कॉलोनी में नई सलाहकार समिति का स्वागत और सम्मान किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता MM सुतार, राष्ट्रीय मानवाधिकार और भ्रष्टाचार विरोधी बीजापुर घटक की जिम्मेदार रजिया मोमिन, युवा नेता अफरोज वाटी के अलावा और भी कई लोग मौजूद थे। विजयपुर से फिरोज शेख की रिपोर्ट। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। बिहार सत्ता परिवर्तन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य का पहला दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आज औरंगाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत भी किया। इसके साथ ही उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर जमकर हमला भी बोला। पीएम ने कहा कि परिवारवादी लोग अपने माता पिता की बनाई हुई पार्टियों के शीर्ष पदों पर बैठ गए, उन्हें पार्टियों को विरासत में मिल गई है और इसके साथ ही उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के काम भी उनके हिस्से आए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद बिहार में परिवारवादी राजनीति पर जाने लगी है। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है, माँ बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन माँ बाप की सरकारों के काम का एक भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती। ये परिवारवादी पार्टियों की हालत है। उन्होंने कहा कि बिहार में जब पुराना दौर था, राज्य को शांति, असुरक्षा और आतंक की आग में झोंक दिया गया था। बिहार के युवाओं को प्रदेश छोड़कर पलायन करना पड़ा। एक आज का दौर है जब हम युवाओं का कौशल विकास कर रहे हैं। बिहार के हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए हमने 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एकता मॉल की नींव रखी। ये नए बिहार की नई दिशा है। ये बिहार की सकारात्मक सोच है। ये इस बात की गारंटी है कि बिहार को हम वापस पुराने दौर में नहीं जाने देंगे। यूपी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज ही अगर हम मन बना ले तो आज ही सपा खत्म हो जाएगी और मैं ये दावे से कह रहा हूं, लेकिन हम लोग नैतिकता के आधार पर और सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। हम लोग इस तरह से खरीद फरोख्त वाले कार्यों में विश्वास नहीं करते। आज जनदबाव में बड़े बड़े जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि भाजपा में कैसे भी प्रवेश मिल जाए। सपा से बागी हुए नेताओं को भाजपा में मिले पैकेज पर बोले कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह, वह जरा अपनी अंतरात्मा टटोल 12 से 17 तक जब तक वह सत्ता में रहे तब यही काम करते रहे। उन्हें पुराना अनुभव है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज सबके लिए आकर्षण का केंद्र है। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के लगातार मैनपुरी दौरे पर कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने तंज कसा और कहा कि उनका पूरा खानदान जुटेगा। पिछली बार चुनाव में पूरा खानदान घर घर घूम गया, लेकिन इस बार कहां जाएगा पूरा खानदान? तब तो एक जगह चुनाव था, लेकिन इस बार पूरे देश में चुनाव है। पूरा खानदान भी तो चुनाव लड़ेगा। मैनपुरी लोकसभा में स्वयं के नाम की चर्चा चलने पर बोले कैबिनेट मंत्री, चर्चा चल रही है, अच्छी बात है, जो भी निर्णय आएगा नेतृत्व का उसको हम स्वीकार करेंगे। जयवीर सिंह के बयान का डिंपल यादव ने करारा जवाब दिया। डिंपल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है और संविधान को भी मिटाना चाहती है। तो आज देश को बचाने के लिए यह लड़ाई बहुत जरूरी है। अब सब जाति वर्ग के लोग साथ आएं और संविधान को बचाने में समाजवादी पार्टी का साथ दें, क्योंकि यह लोग नहीं चाहते कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, और अगर शिक्षा नहीं मिलेगी तो बच्चे कैसे आगे बढ़ पाएंगे। भाजपा ट्रिलियन की बातें तो करती है, लेकिन धरातल पर देखे तो कुछ नहीं करती। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने वायनाड में केरल पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, केरला वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पर बड़ा एक्शन लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर ने यूनिवर्सिटी के एक छात्र की हाल ही में हुई मौत के मामले में इसके वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर MR शशिधरन को शनिवार को सस्पेंड कर दिया। खान ने निलंबन आदेश में कहा कि प्रोफेसर शशिधरन द्वारा दी गई रिपोर्ट 18 फरवरी को 20 वर्षीय सिद्धार्थन की मौत से जुड़े घटनाक्रम के दौरान कुलपति की ओर से कर्तव्यों में घोर लापरवाही का प्रमाण है। गवर्नर खान ने कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पृष्ठभूमि में कुलपति का उनके कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों के प्रति उदासीन, लापरवाह और संवेदनहीन रवैया 28 फरवरी की रिपोर्ट से उजागर होता है। उन्होंने छात्र की मौत की न्यायिक जांच के भी आदेश दिए। राज्यपाल ने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी मौजूदा या रिटायर्ड जज से जांच कराने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा केरल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से उचित अनुरोध किया जाएगा। पशु चिकित्सा विज्ञान व पशुपालन संकाय का स्नातक तृतीय वर्ष का 18 फरवरी को अपने हॉस्टल के बाथरूम में फंदे से लटकाना। रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी शरद पवार के प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को विपक्ष दिग्गज के गढ़ बारामती में नमो रोजगार मेला 2024 के उद्घाटन में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद हैं। नमो रोजगार मेले में एनसीपी संस्थापक की मौजूदगी से
कयासबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। शरद पवार का नाम पहले इस कार्यक्रम में आमंत्रित लोगों की सूची से हटा दिया गया था, लेकिन बाद में उनका नाम तीसरे स्थान पर था। इसके पहले शरद पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री फडणवीस और अजित पवार को अपने आवास पर भोजन के लिए बुलाया था। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने तो व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देकर भोजन के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, जबकि एनसीपी में टूट के बाद से शरद पवार के कट्टर प्रतिद्वंदी बने उनके भतीजे अजित पवार की स्थिति भी भोजन के लिए ज्ञात नहीं है। कांग्रेस की महिला शाखा के प्रमुख अलका लांबा ने शुक्रवार को बलात्कारियों को नपुंसक बनाने वाले कानून की वकालत की। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि महिलाओं, विशेषकर लड़कियों के खिलाफ अपराध बढ़ गए हैं और ये अनियंत्रित हो रहे हैं, क्योंकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता, मंत्री और सांसद इनमें शामिल हैं। अलका लांबा ने मीडिया से कहा, भाजपा की डबल इंजन सरकारें केंद्र और राज्य में उन्हें बचा रही हैं। इन सरकारों को 2 से 3 महीने में नाबालिग पीड़ितों से जुड़े बलात्कार के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक और विशेष अदालतें स्थापित करनी चाहिए। मीडिया से बातचीत करते हुए अलका लांबा ने कहा, दोषियों को फांसी दी जानी चाहिए, उन्हें नपुंसक बनाने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए। जब तक अपराधियों में भय पैदा नहीं होगा, अपराध होते रहेंगे। कांग्रेस बलात्कार पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम करेगी, जबकि भाजपा महिलाओं के लिए घड़ियाली आंसू बहाती है। लांबा ने दावा किया कि भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण सिंह पर कई महिला पहलवानों ने यौन पीड़न का आरोप लगाया है, लेकिन वह खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि पीड़ित न्याय मांग रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि संदेशखाली के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ब्रजभूषण के साथ अति विशिष्ट व्यक्ति की तरह व्यवहार किया जा रहा है। रूसी सेना ने यूक्रेन के ओडेसा शहर पर बड़ा हवाई हमला किया। अधिकारियों ने कहा कि शनिवार को यूक्रेन के ओडेसा शहर में दक्षिण बंदरगाह पर एक रूसी ड्रोन में हमला किया गया। यह हमला एक अपार्टमेंट ब्लॉक में हुआ, इससे इमारत के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। इस हवाई हमले में 3 साल के बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक टेलीग्राम पोस्ट में कहा, रूस नागरिकों से लड़ना जारी है। दुश्मन के ड्रोन ने ओडेसा में एक आवासीय इमारत पर हमला किया। यूक्रेन की राज्य आपातकालीन सेवा ने बचाव कर्मियों द्वारा एक मृत बच्चे की बॉडी को बैग में रखे जाने की तस्वीरें पोस्ट की। इसमें कहा गया कि एक बच्चे सहित 5 लोगों को जीवित बचा गया है। ईरान ने अपने ही एक गायक को गीत गाने पर 3 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई है। ग्रैमी पुरस्कार विजेता रह चुका है। गायक की गलती सिर्फ यह थी कि उसने ईरान में गत वर्ष बुर्का के खिलाफ रहे आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के लिए गीत गाया था, मगर यह बात ईरान सरकार को नगवारा थी, लिहाजा उसने गायक को सजा देने का फैसला सुनाया। बता दें कि ईरान में महसा अमीनी की मौत को लेकर 2022 में हुए प्रदर्शन को समर्थन में अपने गीत को लेकर ग्रैमी पुरस्कार विजेता इस गायक को यह सजा सुनाई गई है। उन्होंने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर अपनी सजा की जानकारी दी। इसी दिन ईरान में संसदीय चुनाव हुए थे। अदालत ने हाजीपुर को व्यवस्था के खिलाफ दुष्प्रचार और लोगों को प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने के आरोप पर 3 साल और 8 महीने की सजा सुनाई है। अदालत ने पाया कि गायक ने गीत प्रसारित करने को लेकर उचित तरीके से खेद नहीं जताया, इसलिए उन्हें सजा सुनाई गई है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। भाजपा नेताओं ने राज्य की कांग्रेस सरकार की विफलताओं को गिनाया। अधिकारी रहे सावधान, न हो पेयजल की समस्या, मंत्री ईश्वर खंडे के निर्देश। वीपी धनखड़ का कहना है कि राजनीतिक फायदे के लिए देश विरोधी भावनाएं फैलाई जा रही हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का कहना है कि मास्क पहने, टोपी पहने आदमी ने टाइमर ठीक कर दिया, बफर गया। औरंगाबाद में तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे पीएम मोदी का परिवारवादी लोगों की राजनीति को बिहार ने नकारा। बीजेपी नेता जयवीर सिंह का बड़ा बयान, हम चाहे तो सपा को खत्म कर, डिम्पल ने दिया जवाब। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।